everyone. How are you all? Hope you all are doing very great. I hope your studies are going very good. So today, students, we are going to start a very new and exciting topic of class 3rd, which is chapter number 4 about birds, the feathered animals. Okay, so in this chapter, we are going to discuss the very beautiful creatures of our nature, that is birds. Okay, now let's start the chapter. Birds are beautiful and melodious feathered animals. They are of different kinds, size, shape and color. They are found all over the earth. So students, birds हमारे काफ़ी beautiful, melodious and feathered animals हैं. Means what? They have feathers on their body. Different kinds, size, shape and colors की birds होती हैं. And almost all over the earth, there are different types of birds present. Birds fly in search of food. Birds क्या करती हैं? Fly करती हैं food की search में. कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि फ्रूट, सीड्स एंड ग्रेन्स को खाती हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड. बर्ड्स के पास क्या नहीं होते? टीथ नहीं होते. ओके, अपने फूड को खाने के लिए. एंड इंस्टेड ऑफ दैट, इसकी जगह वो क्या अपनी बीक्स एंड क्लॉज का यूज करती हैं टू होल्ड, कैच एंड ईट देयर फूड. बीक्स हेल्प बर्ड्स टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम अटैक ऑफ एनिमल्स. एंड इनकी जो बीक्स है उन्हें फूड च्यू करने के अलावा, फूड को खाने के अलावा इनकी बीक्स बर्ड्स को हेल्प करती हैं to defend themselves from the attack of the enemies. You can see there are the given parts name of this bird. ये bird है, यहाँ पे इनके different body parts को show किया गया है. These are the eyes of birds. ये birds के down feathers हैं, ये birds की beak है, ये birds के flight feathers हैं, ये birds के claws हैं, and this is the tail of the bird. The smallest bird, सबसे smallest bird जो होती है, that is the, it has a body consisting of trunk, head, tail, wings and legs. अब birds की body में students क्या different parts होते हैं? bird की body को different section में divide किया जाता है, जैसे कि trunk, head, tail, wings and legs. Okay? The skeleton of a bird, एक bird का skeleton bones का बना होता है and इनकी bones hollow होती हैं, अंदर से खाली खोखली होती हैं and काफ़ी light weighted होती हैं. क्योंकि अंदर से ये hollow होती हैं तो इनकी bones के अंदर air filled होती है. Okay, and because of air filled inside their bones, the body of a bird becomes light and it helps in them flying also. The muscles of a bird help in the movement of wings. Birds की जो muscles है वो उन्हें help करती हैं अपने wings को move करने के लिए. A bird's body, एक birds की body feathers से covered होती है. कुछ feathers इनकी body को warm रखते हैं and उन feathers को जो इनकी body को warm रखते हैं they are called down feathers. Okay? The feathers attached to the wings and the tail bone help the birds to fly. And वो सारे feathers जो bird की wings and tail पे attached होते हैं वो एक bird को fly करने में help करते हैं. And these feathers are called flight feathers. Now they are long. Flight feathers काफ़ी long होते हैं and इनके wings and जो bird की tail bone होती है उसे properly cover करते हैं. They also help the birds to change the direction while flying high. And इसके अलावा जब birds काफ़ी high fly करते हैं in the sky, वहाँ पे इनकी direction को change करने में भी these feathers help them. Okay? You can see in this picture they have shown you the different types of feathers. These are down feathers and these are flight feathers. The biggest bird, see smallest bird कौन सी थी? Hummingbird. And सबसे biggest bird is ostrich. Ostrich also lays the biggest eggs and ostrich के through जो eggs lay किए जाते हैं वो भी सबसे biggest होते हैं. Now how do birds fly? अब birds कैसे fly करती हैं? So when birds fly, they trap their wings up and down and gradually goes up into the air. During flight, the wings performs two type of movement. So students, जब birds fly करती हैं वो अपने wings को flap करते हैं ऊपर नीचे, up and down इस तरीके से wings को flap करती हैं and धीरे धीरे air में ऊपर की तरफ जाती हैं. एंड जब वो फ्लाई करती हैं तो उनके विंग्स दो टाइप के मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं. नंबर 1 अपस्ट्रोक. अपस्ट्रोक मीन्स व्हाट? जब विंग्स अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स मूव करते हैं तो इस टाइप के मूवमेंट को कहा जाता है अपस्ट्रोक. देन वी हैव डाउन स्ट्रोक व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. अब जब विंग्स डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ एंड फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इस टाइप ऑफ मूवमेंट को, विंग्स के इस टाइप ऑफ मूवमेंट को डाउन स्ट्रोक कहा जाता है. Now different birds, अब बात करते हैं different types of birds की. So ostrich, penguin, kiwi, these are the birds which do not fly. Okay, यानी कि ये birds हैं, still they cannot fly. Okay, they move on the ground. ये ground पे ही move करती हैं food की search में. किसके थ्रू? अपने legs की help के थ्रू.
एंड देयरफॉर दीज बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेट बर्ड्स. इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है. ये बर्ड्स जो हैं काफ़ी बिग होती हैं इन साइज. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी. दीज आर द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. एंड इनके फ्लाई ना करने का जो रीज़न है दैट इज़ वॉट कि इनका बॉडी साइज बहुत ज़्यादा बिग होता है. ये बॉडी वेट में काफ़ी हैवी होती है एंड इसलिए अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पाती टू फ्लाई अप. ओके, नाउ नेक्स्ट, सम बर्ड्स फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. अब कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्लाई करती हैं. इन ओल्डन डेज, पहले समय में क्या होता था स्टूडेंट्स, पिजन्स यानी कि जो कबूतर होते थे उन्हें यूज़ किया जाता था टू कैरी लेटर्स को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्वलोज भी क्या थी, ये भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्लाई करते थे. क्रो, पिजन, ये सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि टायरलेसली, बिना थके काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ईजिली फ्लाई कर सकती हैं. Then there are birds like hen, cock, peacock. They are also simply hop over short distances. Hen, cock and peacock ऐसी birds हैं जो कि simply क्या hop करती हैं, यानी कि थोड़ा सा उछलती हैं, कूद सकती हैं. वो भी काफ़ी short distances तक, ज़्यादा long distances ये fly नहीं कर सकती हैं. Birds like sparrow, bulbul are although very small and light, yet they fly only over short distances and at low height. स्पैरो, बुलबुल, ये कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि ऑल्दो काफ़ी स्मॉल हैं, लाइट वेटेड हैं, लेकिन स्टिल ये कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही फ्लाई कर पाती हैं एंड वो भी लो हाइट पे, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई तक फ्लाई नहीं कर पाती हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रे बर्ड्स. सम बर्ड्स फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स. अब कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि काफ़ी ग्रेट हाइट, काफ़ी ऊंचाई तक फ्लाई कर सकती हैं. ओके, एंड बर्ड्स ऑफ प्रे, इन बर्ड्स को प्रे बर्ड्स कहा जाता है बिकॉज ये क्या करती है, ये दूसरे एनिमल्स का शिकार करती हैं. ओके, एंड उन्हें फिर खाती हैं. जैसे कि बल्चर, काइट, ईगल, ये सारी प्रे बर्ड्स होती हैं एंड दे कैन फ्लाई एट अ ग्रेट हाइट ऑल्सो. दे हैव शार्प आइज टू सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड, यानी कि आइज काफ़ी शार्प होती है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से भी व्हेन दे आर इन फ्लाइंग इन द स्काई, वहाँ से भी ग्राउंड पर ये अपने प्रे को ईजिली स्पॉट कर सकती हैं. दिस इज काइट, दिस इज ईगल एंड दिस इज वल्चर. ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्वेटिक बर्ड्स. एक्वेटिक बर्ड्स आर द बर्ड्स दैट लिव इन वाटर. अब वो सारी बर्ड्स जो कि वाटर में रहती हैं उन्हें एक्वेटिक बर्ड्स कहा जाता है. सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स आपकी वाटर में स्विम करती हैं, व्हाइल अदर्स वेड इन वाटर. बट बोथ दीज टाइप्स ऑफ बर्ड, लेकिन ये दोनों ही टाइप्स ऑफ बर्ड्स के पास फीट होते हैं. स्विमिंग बर्ड्स के पास वेब्ड फीट होते हैं, जबकि वेडिंग बर्ड्स के पास थिन लॉन्ग लेग्स होते हैं जिनकी जो टोज हैं वाइड एंड स्प्रेडिंग टोज होते हैं. नेक्स्ट वी हैव ईटिंग बर्ड्स. अब बात करते हैं ईटिंग बर्ड्स की. सो डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. हर एक बर्ड की एक डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती है. एज आई टोल्ड यू, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. ओके, डिफरेंट बर्ड्स, अब डिफरेंट बर्ड्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स होती हैं जिसके थ्रू ये क्या कर पाते हैं, अपने फूड को खा पाती हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक. फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक. सबसे पहले शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक की बात करेंगे. तो स्पैरो, पिजन, पीकॉक, इन सभी के पास शॉर्ट, हार्ड, हॉर्नी एंड कोन शेप बीक होती है जो इन्हें हेल्प करती है टू पिक अप एंड द क्रश सीड्स एंड ग्रेप्स. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स. सो आपकी जो ये बर्ड्स हैं लाइक काइट, ईगल, वल्चर, हॉक, ये सभी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं. ओके, एंड ये अपनी बीक्स का यूज करती हैं फॉर टेयरिंग द फ्लैश ऑफ देयर प्रे, अपने शिकार के फ्लैश को टीयर करने के लिए, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव हुक्ड बीक. सो पैरट एंड पैराकीट्स, ये ऐसी बर्ड्स हैं जिनके पास हुक्ड बीक्स होती हैं. ये क्या कर सकते हैं, दे कैन ईजिली क्रैक द नट्स, ये नट्स को क्रैक कर सकते हैं एंड जो हार्ड फ्रूट्स हैं उनको बाइट कर सकते हैं ईजिली विद सच काइंड ऑफ अ बीक. The parrot, unlike other birds, moves the upper part of its beak. See, कोई भी अदर बर्ड जो है अपने बीक के अपर पार्ट को मूव नहीं कर सकता. ओके, बट पैरट जो है इजिली अपने बीक के अपर वाले पार्ट को भी मूव. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप बीक. सो अ वुडपेकर एक बर्ड है जो कि क्या करता है, बार्क ऑफ ट्री को इजिली टैप करता है अपनी बीक के थ्रू, सो दैट उस बार्क ऑफ ट्री के अंदर जो वर्म्स है वो उन्हें खा सके. Its strong and chisel shaped beak help is to do this, and वो ये easily कर पाता है अपनी strong and chisel shaped beak के through. You can see this is a woodpecker, and you can see the type of the beak it is having, that is chisel and strong shaped.
ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, तो डक्स एंड स्वान के पास फ्लैट बीक्स होते हैं जिनके अंदर स्ट्रेनर्स भी होते हैं। ओके, यानी कि इनकी बीक की जो साइड्स वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे स्ट्रेनर्स होते हैं। वाटर एंड मड गो आउट थ्रू दी स्ट्रेनर्स, वाटर एंड मड इन्हीं स्ट्रेनर्स के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एंड जो फिश या टिनी वर्म्स होते हैं वो इनकी बीक के अंदर रह जाते हैं, जिन्हें ये इजिली खा लेती हैं। देन ब्रॉड शॉर्ट एंड स्टिकी बीक, अब कुछ ब्रॉड शॉर्ट एंड स्टिकी बीक्स भी होती हैं, जैसे कि स्वेलो के पास एक ब्रॉड शॉर्ट एंड स्टिकी बीक होती है। स्वेलोज गो अराउंड एंड अराउंड थ्रू एयर विद देयर बीक्स ओपन। ओके, स्वेलोज का काम क्या है कि वो एयर में घूमती रहती हैं अपनी बीक्स को ओपन रखकर। ओके, एंड क्योंकि इनकी बीक्स स्टिकी होती हैं, सो एयर में जितने भी टिनी इंसेक्ट्स हैं वो इनके माउथ में स्टक हो जाते हैं एंड देन दे ईट दोस इंसेक्ट्स। Long and slender beak. A hoopoe is also a bird which is having long and slender beak so that it can easily pull out the insects. Okay, ground में या trees में holes करके easily insects को pull out करने के लिए they use their long and slender beak. Okay, you can see this is the hoopoe bird. Okay, and it is having a long and slender beak. Now feet and claws. अब बात करते हैं birds के feet and claws की. So claws of birds are very helpful to them. सी, जैसे कि बीक्स जो थी बर्ड्स की काफ़ी हेल्पफुल थी, इस तरीके से बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उनके लिए। बर्ड्स मेनली अपने फीट का ही यूज़ करती हैं अपने फूड को कैच करने के लिए एंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे ऑल्सो यूज देम टू सिट ऑन ब्रांचेस। उसके अलावा ये अपने क्लॉज एंड फीट का यूज़ ब्रांचेस पर बैठने के लिए भी करती हैं। सम बर्ड्स यूज देम इन अदर वेज ऑल्सो, एंड कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो इनको अलग डिफरेंट वेज में भी यूज़ करते हैं। The hummingbird can remain at one spot up to an hour during flight. अगर बात करें hummingbird की, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड थी, वो एक ही स्पॉट पर कई आवर्स तक इजीली बैठ कर रह सकती है और ये एक ही स्पॉट पर अप टू एन आवर ये बैठ सकती है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। So the chapter is completed. I hope you all must have understood about the beautiful creatures of our nature known as birds. Okay, their varying features, how do they help them in their lifestyle. So the chapter is done. I hope it was very clear. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.